بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں کا یہی رواج تھا۔ ہر قبیلہ کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتائیں بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی قبیلہ تھا اور وہ بھی الگ الگ مذہب کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا کوئی گارنٹی نہیں تھا۔ اس اندھیرے دور میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن صبح فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے پورے مکہ کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سید آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن سیدھا تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں۔ دوستو، جب حضرت محمد پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہی رواج تھا۔ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پالنے بڑے ہونے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پہلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوئے کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا تھا، وہیں انہیں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے مجھے اچھا مال مل جائے گا تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزارا بسر ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا اور جیسے ہی دائی حلیمہ نے اپنے گود میں حضرت محمد کو اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملنا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر محمد کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ محمد کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے شوہر حارث کو اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد کے ساتھ ایک
दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गईं। वो ऊँटनी जब बनी साद के कबीले निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो बहुत सूखी और सुस्ती से चलती थी। मक्का पहुंचते ही वो और ज़्यादा सुस्त हो गई। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी, और अब ऊँटनी की आखिर हो क्या गया है कि वो बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियों कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी, जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़या मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा, और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 साल में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इसी वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घरवालों को सौंप दें, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको बच्चा वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद को उनके लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हज़रत अमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हज़रत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हज़रत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और आप इस बच्चे को अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हो गई तो एक दिन आप दाई हलीमा का घर के बाहर वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। उसमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का दूध शरीक भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप ज़मीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हज़रत मोहम्मद से मिलने आए थे। जैसे ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आपको ज़मीन पर लेटा हुआ देख उन्होंने आपको ज़मीन पर लेटा कर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमज़म के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोटरा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया है, और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके दिल में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुँचे गए और कहने लगे कि मोहम्मद की किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आपके पास पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर बाद आपको होश आ गया है। ये देखकर हलीमा की जान में जान आ गई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर हज़रत मोहम्मद को हज़रत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हज़रत आमिना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 में जब आपकी उम्र मुबारक 5 और 6 साल के बीच हुई थी, तब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के साथ और अपने दादा हज़रत अब्दुल्ला मुतालिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपने 2 ख़ास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिदा हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात ये कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का नानी हाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने
या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत दुखी हुए, क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने बाद मदीने से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में एक ही अचानक आपकी वालिदा हज़रत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरीके से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीने के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमिना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी और आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश का ज़िम्मा उठाया। दोस्तों, उस वक्त अरब में यतीम बच्चों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, फिर ऐसे बच्चों को अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता था, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी। जैसे कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपका सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपके दादा ने अपने दूसरे बेटे यानी आपके चाचा अबू तालिब के हवाले कर दिया। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू तालिब कुरैश कबीले के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाँव में उनके लिए एक ख़ास फर्श बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहाँ पर आ गए और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी उन पर बैठने देते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपके साथ रहते, अपने साथ में घूमने फिराने लेके जाते थे और हमेशा आपको खुश रखते थे। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई थी, मगर सोचिए अल्लाह ने अपने नबी को कैसी कैसी आजमाइशों से गुजारा और आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र इसी आजमाइशों में पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हो चुकी थी और उस वक्त आपको एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। उस आजमाइश और बचपन से जवानी तक का पूरा सफ़र जानेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।